Today we have discussed about the topic natural resources. Myself, W.V. Bodele, lecturer in chemistry department, CS Institute of Technology Devri, Dist Gondia. So first of all, the topic natural resources, 16 marks. 16 marks. First, we have discussed about the topic energy resources. Energy resources, course outcomes, alternative energy resources for engineering practice. तो अपन यूनिट सेकंड के बारे में देख रहे। यूनिट सेकंड है एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि एनर्जी मीन्स क्या। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। इज द एबिलिटी टू डू वर्क मीन्स एनर्जी। फिर एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है। सोलर एनर्जी है, फ्यूल है, डीजल है, ये एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सा काम कर रहा है। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, टू ड्राइव टू स्कूल एंड टू जंप इन द एयर। इट टेक्स एनर्जी टू कुक फूड, खाना भी अपन बना सकते, टू ड्राइव टू स्कूल एंड टू जंप in the year. The term natural resources was first coined and popularized by E.F. Schumacher in the 1970 years by his famous book Small is Beautiful. जो term natural resources, ये टर्म जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम है E.F. स्कूमैचर इन द ईयर 1970 बाय हिज फेमस बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेस। एनीथिंग इन द एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड is called as natural resources. Some of our important natural resources are forest, wildlife, coal and petroleums. Natural resources means कौन कौन से natural resources, forest है, wildlife, coal and petroleums, resources which used to generate energy, gives power, heat to drive objects. Due to urban development, electricity need and industrializations, man started using natural resources at a much larger scale. This overutilization creates many problems. In some region, there are problems of waterlogging due to over irrigations. So then, first, natural resources can be defined as any substance that is present in nature
independently of human industry and exploited in some or another way by human. It is called as the natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल जब भी मैंने बताया, एग्जाम्पल्स है फॉरेस्ट है, वाटर्स है, मिनरल्स. टॉपिक नेचुरल resources. A natural resource is anything we can use which comes from nature. We do not make natural resources but gather them from the earth. तो नेचुरल रिसोर्सेस उसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस एंड लैंड रिसोर्सेस. देन लास्ट है मिनरल रिसोर्सेस. तो फर्स्ट अपन देखते फॉरेस्ट रिसोर्सेस. अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड on which trees and other plants grow naturally is called as forest. The word forest is derived from the Latin word foris, means outsides. ये जो फॉरेस्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, वो कैसे लिया है? फोरिस. जो फॉरेस्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया है फोरिस. Forest means outside. In India, forests form 23% of the total land area. इंडिया में 23% the total land area. Thence, wood is used as a source of energy for cooking purpose, for keeping warm. वुड जो फॉरेस्ट में मिलता है वो काहे के लिए यूज होता है? कुकिंग पर्पज एंड फॉर कीपिंग वार्म. देन टिम्बर. वुड इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, टूल हैंडल्स, रेलवे स्लीपर्स एंड बोट्स. टिम्बर से अपन क्या बना सकते? रेलवे स्लीपर्स, फर्नीचर, टूल हैंडल्स एंड बोट्स. देन बाम्बू. दीज आर यूज फॉर मैटिंग, फ्लोरिंग, बास्केट्स, रूफ्स एटसेट्रा. जो फॉरेस्ट से जो फूड मिलते, फूड कंटेन्स फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड मीट ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स. देन शेल्टर inside the insects, birds, reptiles, mammals and microorganisms are provided shelter by forest. Next, paper. Wood and bamboo pulp are used for manufacturing paper. पेपर कैसे बनेगा? वुड एंड बाम्बू पल्प, इससे पेपर बनेगा. और पेपर काय के लिए यूज होता है? न्यूज प्रिंट, पैकिंग, सैनिटरी पेपर एंड स्टेशनरी. देन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कौन कौन से? गम, ड्रग, हनी एंड वैक्स. नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेस. वाटर रिसोर्सेस. अबाउट 97% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर्स. कितना परसेंट वाटर कवर्ड है? 97%.
of the earth's surface covered by waters. Most of the animals and plants have 60 to 65% water in their body. एनिमल और प्लांट्स के बॉडी में 60 to 65% वाटर प्रेजेंट रहता है. यूज ऑफ वाटर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. वाटर का यूज क्या में होता है? एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में, घर में एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. अबाउट 2.5% ऑफ टोटल वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर कितना परसेंट अवेलेबल है? 2.5%. 70% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज प्रेजेंट एज फ्रोजन आइस एंड ग्लेशियर. A little less than 30% of total fresh water is stored as groundwater. India ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. India receives about 105 to 117 centimeter rainfall annually. इंडिया में रेनफॉल कितना होता है? 105 से 117 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली होता है, बारिश होती है. इंडिया यूजेस ओनली 10% ऑफ रेन वाटर. इंडिया 10% रेन वाटर क्या करता है? यूज करता है. इंडिया 14 मेजर रिवर्स. इंडिया में कितना मेजर रिवर्स है? नदी कितनी है? 14. ब्राजील इज द कंट्री एस्टिमेटेड टू हैव लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय रशिया एंड कनाडा. ब्राजील इज द फर्स्ट कंट्री. जो ब्राजील है ये फर्स्ट कंट्री है, वो क्या करता है? फ्रेश वाटर सप्लाई करता है in the world, followed by Russia and Canada. India uses 87% of its water for agriculture. इंडिया में 87% वाटर खेती बाड़ी में यूज होता है. 8% वाटर इंडस्ट्री में यूज होता है और 5% फॉर डोमेस्टिक पर्पज. 5% क्या में होता है? डोमेस्टिक, घर में यूज होता है. देन नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस है एनर्जी रिसोर्सेस. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल, मीन्स सोलर एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी. देन वाइंड एनर्जी मीन्स hydropower. Non-renewable, it is also called as conventional source of energy. Conventional source of energy है coal, petroleum, natural gas and nuclear energy. रिन्यूअल का मतलब होता है उसको रिन्यू करना. नॉन रिन्यूअल मतलब वो रिन्यू नहीं हो सकता. जैसा कोल है, कोयला है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते. पेट्रोल है, उसको रिन्यू नहीं कर सकते. तो जो रिन्यूएबल सोर्सेस है जैसे सोलर एनर्जी है, वो अपन रिन्यू कर सकते उसको. ऑक्सीजन है, उसको रिन्यू कर सकते. देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस that cannot be replaced after they have been used. नॉन रिन्यूएबल मतलब वो रिन्यू नहीं होने वाला जो सोर्सेस है उसको डबल यूज नहीं कर सकते.
that cannot be replaced after they have been used. The plants stored energy from the sun during photosynthesis. Animals, जो प्लांट्स है वो अपनी एनर्जी स्टोर करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. Animals store the same energy by eating the plants. Renewable energy sources that can be used and replaced in nature in a short period of time. Renewable energy sources that can be used and replaced. ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिप्लेस्ड होती है. और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी नॉट रिप्लेस्ड. Renewable energy which comes from natural resources such as sunlight, wind, etc. Then next sources है soil or land resources. Then land is a finite and valuable resource upon which we depend for our food, fiber and fuel wood. Soil is also a valuable resources. Soil is also a valuable resources. Land resources means the land that is available for non-agriculture, lands for building and developing township, land for agriculture, land for industrial. Land का यूज कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर, building and land for industrial area. Then land resources that are available from the land, thus the agricultural land which contains natural fertilizers for growth of the products, the underground water, the various minerals like coal, bauxites, gold and other raw materials are the land resources. क्या मिलेगा जमीन के अंदर? कोल, बॉक्साइट, ये भी कोल है, गोल्ड एंड अदर रॉ मटेरियल्स आर द लैंड रिसोर्सेस. लैंड रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस. लैंड रिसोर्सेस है मतलब जमीन के अंदर जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं, कौन कौन से मिलते? कोल मिलेगा, बॉक्साइट ये भी कोल है, कोयला जिसको बोलते, गोल्ड, सिल्वर, अदर रॉ मटेरियल्स आर द लैंड रिसोर्सेस. तो ये कौन सी है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस. जो जमीन के अंदर से जो भी रिसोर्सेस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस आर कन्वेंशनल रिसोर्सेस. देन लैंड इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज. अपन जो रहते हैं उसके लिए भी लैंड का यूज होता है. लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, प्राइमरी प्रोड्यूसेस फूड फॉर पीपल टू ईट. देन नेक्स्ट रिसोर्सेस है मिनरल रिसोर्सेस. मिनरल्स खनिज पदार्थ जिसको बोला जाता है, जमीन के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ मिलता है उसको बोलेंगे मिनरल्स. मिनरल्स इज द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट in earth crust which contains metal in free state or in combined state. It is called as the minerals. मतलब जमीन के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. कहाँ मिलता है? प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, जमीन के अंदर मिलेगा. और ये मिनरल्स में क्या प्रेजेंट रहेगा? मेटल्स, मतलब एक धातु प्रेजेंट रहेगा. वो भी धातु कैसे रहेगा? फ्री स्टेट में मिलेगा और कंबाइंड स्टेट में मिलेगा.
फ्री स्टेट मतलब उसको बोलते हैं मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे गोल्ड सिल्वर ये फ्री स्टेट में मिलता है। देन minerals are naturally occurring inorganic crystalline solids having definite chemical compositions. Minerals are valuable natural resources being finite and non-renewable. And ore is a mineral or combination of minerals from which is useful substance such as metals can be extracted and used to मैन्युफैक्चर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो भी मिनरल्स ज़मीन के अंदर से मिलेगा उसमें इम्प्योर मेटल रहेगा, बहुत सारे मेटल्स रहेंगे, कॉपर मेटल्स रहेगा, आयरन मेटल्स रहेगा, उसको क्या बनाते फिर प्योर बनाते। मीन्स मिनरल्स में क्या रहता है, एक मेटल्स रहता है। देन दीज आर 4 types of mineral resources: metals, aluminum, iron, coppers. Then industrial minerals, example lime, potash. Next है construction materials. construction materials कौन कौन से? सैंड, स्टोन एंड ग्रेवल। लास्ट है फ्यूल एनर्जी मिनरल्स। फ्यूल मतलब फ्यूल एनर्जी, ईंधन। तो कैसे मिल रहा? यूरेनियम एंड पेट्रोलियम्स। तो टाइप कितने हैं मिनरल्स के? फर्स्ट है मेटल्स, सेकंड है इंडस्ट्रियल मिनरल, थर्ड है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और फोर्थ है फ्यूल एनर्जी मिनरल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, व्हाट इज मीन्ड बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेस? रिन्यूएबल resources are the natural resources are those which can be made available for long time by natures, long time by natures। जैसे ऑक्सीजन है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ऑक्सीजन्स, वाइन जिसको बोला जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस इज रिसोर्सेस विच इज रिप्लेस्ड नेचुरली, विच इज रिप्लेस्ड नेचुरली। और नेचुरली क्या होते हैं? रिप्लेस्ड होते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, ये भी नेचुरली रिप्लेस्ड होते हैं। ये हर है, ये भी नेचुरली क्या होता है? रिप्लेस्ड होता है। देन द रिसोर्सेस दैट कैन बी रिप्लेस्ड एज दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस के एग्जांपल सोलर एनर्जी। कैसे मिलती है सोलर एनर्जी? सनलाइट, वाइंड एनर्जी एंड टीडल एनर्जी। जो समुद्र की जो लहरें हैं उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको बोलते हैं टीडल एनर्जी। दीज आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल मतलब वो कभी, यानी इनएग्जॉस्टिबल यानी कंटिन्यू चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड टोटली। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड टोटली and can be reproduce themselves later in natures. They can be reproduce. They can be reproduce. फिर से फिर वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस चलते रहेगा। ऑक्सीजन, एयर, वाइंड एनर्जी मिलती रहेगी, वो चलती रहेगी, फिर से प्रोड्यूस होंगी। सोलर एनर्जी फिर से प्रोड्यूस होंगी। टीडल एनर्जी समुद्र के लहर फिर से प्रोड्यूस हो, ये कंटिन्यू चलते रहेगा।
उसी कुछ क्या बोला है, ये रिप्लेस्ड हो जाएगा, रिप्लेस होते रहेगा, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेस। देन फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट एनर्जी, उससे क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर सन फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। कहां पे यूज होता है सोलर एनर्जी, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट एनर्जी से क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम सन, ये काय में यूज होगा, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। घर में भी इसका यूज होता है सोलर एनर्जी का। देन वाइंड एनर्जी, मूविंग एयर, काय में यूज होता है, वाइंड मिल्स। देन टीडल एनर्जी, राइज एंड फॉल ऑफ टीडल वाटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टीडल एनर्जी, वाटर से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं टीडल एनर्जी। ये एनर्जी से क्या जनरेट होती है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेस। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर आल्सो रिन्यूएबल resources. Then non-renewable resources. Non-renewable resources, it is also called as the conventional source of energy. Conventional source of energy. Solar energy, it is also called as the non-conventional source of energy. Non-conventional source of energy, it is called as the solar energy. Non-renewable resources means conventional source of energy. Non-renewable natural resources are those which would face shortage or get extinguished at a point of time when stock is exhausted. The resources which consume a very long time for its regenerations. Non-renewable resources जैसे वुड है, कोल है, ये एग्जॉस्टेड है, मतलब ये क्या होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। एक दिन ऐसा आएगा, क्या होगा ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टेड, स्टॉक इज एग्जॉस्टेड, द रिसोर्सेस विच कंज्यूम वेरी लॉन्ग टाइम्स फॉर इट्स जनरेशन। एक दिन ऐसा आएगा कि ये रिसोर्सेस क्या होंगे, रिप्रोड्यूस नहीं होंगे। द रिसोर्सेस दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज्ड अप आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, रिप्लेसेबल नहीं है। दे आर यूज्ड अप are called as non-renewable resources. They cannot be replaced. Non-renewable resources, they cannot be replaced. Or non-renewable resources, it is also called as exhaustible resources. Then they may become non-renewable resources if more is used than nature can be replaced in time. Examples: wood, coal, coke, crude oil, diesel, petrols and natural gas. ये काय के एग्जाम्पल्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, मतलब ये रिन्यू नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड देमसेल्फ। दीज आर आल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे उसको, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं होंगी। जैसे वुड है, कोल है, कोल जलने के बाद रिप्रोड्यूस नहीं होगा, बाद में रिप्रोड्यूस नहीं होगा, जल गया तो उसको क्या, उसकी क्या बनेगी, ऐश बनेगी।
क्रूड ऑयल डीजल पेट्रोल जल गया तो रिप्रोड्यूस नहीं होगा, जैसा का वैसा नहीं है। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट इज आल्सो कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। दे दिस मीन्स दैट दे कैन बी डिस्ट्रॉय, दे कैन बी डिस्ट्रॉय, मतलब एक बार उसको यूज करने के बाद वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डबल प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस नहीं होगा। देन इट इज स्टोर्ड एंड अवेलेबल इन वेरी लिमिटेड फॉर्म इन नेचर, वेरी लिमिटेड फॉर्म इन नेचर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ये कौन से फॉर्म में रहेंगे, वेरी लिमिटेड फॉर्म में रहेंगे। वुड, जंगल जो फॉरेस्ट में जो वुड है वो भी लिमिटेड फॉर्म, कोयला है वो भी लिमिटेड फॉर्म में, क्रूड ऑयल है, डीजल पेट्रोल्स वो भी लिमिटेड फॉर्म में, नेचुरल गैस वो भी लिमिटेड फॉर्म में। देन वी कैन नॉट रिन्यू देम वंस यूटिलाइज, these are also known as conventional source or natural source of energy. Then next topic है cyclic resources. Cyclic resources, the resources cyclic, what is mean by cyclic resources? The cyclic resources which can be used again and again passing through some process are known as cyclic resources. cyclic resources मतलब उसका साइकिल चलती, जैसा वाटर है, पानी का जो साइकिल है, वैसे ये रिसोर्सेस का क्या चलेगा, साइकिल चलेगा, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। सम नेचुरल रिसोर्सेस आर साइक्लिकली यूज्ड, फॉर एग्जांपल वाटर। साइक्लिक जो रिसोर्सेस है उसका साइकिल चलते रहेगा, चक्र जो है वो चलते रहेगा, तो उसका जो मेन एग्जांपल्स है साइक्लिक रिसोर्सेस का वाटर। इट मीन्स दे कैन बी यूज कंटिन्यूसली, दे कैन बी यूज कंटिन्यूसली। वाटर यूज इन इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पज कैन बी क्लीन्ड। तो साइक्लिक रिसोर्सेस किस टाइप से होता है, बाय वे ऑफ रेनफॉल वी रिसीव वाटर्स, द लाइफ ऑन अर्थ uses water for consumption in various needs. They are being 70% water covers on the earth due to solar energy. The surface water evaporates, leads to cloud forming and again there is rainfalls. मतलब 70% जो वाटर प्रेजेंट है कवर ऑन द अर्थ, अर्थ में कितना परसेंट, 70% वाटर, वो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा मतलब उसकी वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स फिर उसका कन्वर्शन क्या में होगा, वो वेपर से एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होंगे, फिर उसका कन्वर्शन क्या में होगा, फिर से कूल होके वाटर में होगा, फिर वाटर क्या होगा, फिर से वाटर बनेगा, फिर से जमीन के अंदर वाटर आएगा, फिर से वाटर क्या होगा, इवेपोरेट्स होगा। दे आर बीइंग्स, द सरफेस वाटर इवेपोरेट्स लीड्स टू क्लाउड फॉर्मिंग्स एंड अगेन देर इज अ रेनफॉल्स, देर इज अ रेनफॉल्स। देन साइक्लिक रिन्यूएबल रिसोर्सेस, या डायग्राम दी हुई है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दोनों डायग्राम दिए हुए हैं। साइक्लिक रिसोर्सेस, सम नेचुरल रिसोर्सेस आर साइक्लिकली रीयूज्ड। देन causes and effects of depletion of cyclic resources. Resources depletions, causes and effects of depletion of cyclic resources, depletion of resources. तो depletion of resources, resources depletion is the consumption of
resources faster than it can be replenished. Natural resources are commonly divided between renewable resources and non-renewable resources. The major resource depletion are listed below. फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशंस, मतलब ये जो रिसोर्सेस है वो क्या होगी, डिप्लेशंस मतलब कम होते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, ये जो रिसोर्सेस है कम होते जा रहे हैं, क्यों कम होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। Resources depletion is the consumption of a resources faster that it can be replenished. Natural resources are commonly divided between renewable resources and non-renewable resources. Causes of depletion of resources. Depletion of resources यानी कम क्यों होते जा रहा है ये resources। फर्स्ट ओवर पॉपुलेशंस, फर्स्ट कारण कौन सा है, ओवर पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन के वजह से ये जो सोर्सेस है, ये जो सोर्सेस है वो सोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड्स ऑफ द कंट्री इंक्रीज विच फर्दर रिजल्ट्स इन डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के वजह से क्या होते जा रहे हैं, ये जो सोर्सेस है ये सोर्सेस क्या होते जाएंगे, डिप्लेट मतलब कम कम होते जा रहे हैं। देन डिफॉरेस्टेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल तोड़ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जो परिसंस्था है वो परिसंस्था क्या होती जा रही, नष्ट होती जा रही है। Then forests are cut annually to make space for multiplexes, residential complexes. This not only destroy trees and wood as a resources, but also destroy home of thousands of species of animals. मतलब जंगल कटिंग्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स, इससे वजह से भी ये जो रिसोर्सेस है ये रिसोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मतलब जंगल में जो भी वुड मिलेगा, फ्रूट मिलेगी, मेडिसिनल प्लांट्स मिलेगा, तो जंगल तोड़ के कारण ये जो स्पेसीज है ये स्पेसीज क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये स्पेसीज कम होंगे मतलब जो सोर्सेस है वो सोर्सेस, जो जंगल से जो भी सोर्स जो आपको जो मिलने वाला है वो क्या होगा, कम होते जा रहा। मतलब जंगल कम होते जा रहा तो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होंगी, जो परिसंस्था है जंगल में जो भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम क्या होंगी, वो डिस्ट्रक्शन होंगी, नष्ट होंगी। देन माइनिंग, ये माइनिंग भी एक कारण है, इसके वजह से भी रिसोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं। तो माइनिंग ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल मिनरल्स एंड मेटल्स आर इन हाई डिमांड्स इन टुडे। दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम एज ओर्स आर बीइंग डिप्लेटेड डे बाय डे। माइनिंग में जो भी मिनरल्स है वो मिनरल्स वो भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, तो मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी मिनरल्स है माइनिंग में, जो भी मिनरल्स मिलता है वो एक दिन ऐसा आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक कारण अफेक्ट करता है काय के ऊपर,
रिसोर्सेस के ऊपर। देन 4 कारण अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से? काजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस के ऊपर कौन कौन से अफेक्ट करते फैक्टर्स? ओवर पॉपुलेशन, ओवर कंज्यूमशन एंड वेस्ट, देन डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एंड लास्ट है माइनिंग। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशंस। The depletion of natural resources was adverse effects not only on the human life but the environment. Resources, depletion of resources का जो भी इफेक्ट है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी है और एनवायरमेंट के ऊपर भी है। तो फर्स्ट फैक्टर्स है रिसोर्सेस स्कॉर्सिटी। Resources like fossil fuels, timber, water, land become scarce because of over consumptions and degradations, mostly in the area of tremendous population growth. Then rising prices. Rising prices, when natural resources become scarce, food, fuel and energy prices rise. Even the price of renewable resources increases if they need to be shipped to rich areas where these have been depleted. Then water shortage. When infrastructure development, population growth increases, water shortage occur. As of today, almost 1 billion people lacks access to clean waters. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वाटर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा, फिर पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा वाटर का क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा। ये भी एक इफेक्ट करता है। देन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसको एक प्रिवेंटिव मेथड्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब डीजल पेट्रोल्स का यूज कम करना पड़ेगा। कीप वाटर क्लीन, प्रिजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट, प्रिजर्व ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जंगल को क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा, तब क्या होगा? ये डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा? कम होगा। देन एनर्जी फॉर्म्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। एनर्जी दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द conventional source of energy, or conventional source of energy it is also called as the non renewable source of energy. For example, fossil fuels like diesel, petrols, coal, coke and nuclear fuels. Non conventional source of energy it is also called as the renewable source of energy. Renewable source of energy means solar energy. जैसे सोलर एनर्जी को अपन रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से जो रेडिएशन मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सोलर एनर्जी मिलती है, सनलाइट से जो सोलर एनर्जी मिलती है। तो सोलर एनर्जी मीन्स नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से? सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स कौन कौन से?
पेट्रोल से, डीजल है एंड हाइड्रोजन्स. Then what is the difference between conventional energy and non-conventional energy? तो conventional energy, these are non-renewable source of energy. Non-conventional energy, these are renewable source of energy. Conventional energy are mainly physical state. कन्वेंशनल जो एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन सी है? कोल, कोक, न्यूक्लियर फ्यूल्स. तो कन्वेंशनल एनर्जी मेनली फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, these are not in any particular physical state. इसमें फिजिकल स्टेट नहीं रहेगी नॉन कन्वेंशनल में, और इसमें कन्वेंशनल एनर्जी में क्या रहेगी? स्टेट रहेगी. मतलब वो कौन से स्टेट में? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है. जैसे कोल, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कोल है, सॉलिड में आता है. डीजल, पेट्रोल लिक्विड में आता है. गैस है, जैसे HP गैस है, ब्यूटेन, मीथेन्स, ये कौन से फॉर्म में आते हैं? गैसियस फॉर्म में. मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट और गैसियस फॉर्म. देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी ओनली ऑन कंबस्टन. मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया. कौन कौन से एग्जाम्पल्स? कोल है, डीजल है, पेट्रोल है. तो ये जब जलेगा, कंबस्टन का मीनिंग क्या होता है? जलना. ये जब जलेगा, जैसे गाड़ी में अपन पेट्रोल डीजल डालते हैं, तो जब ये जो डीजल पेट्रोल जलेगा तब क्या होंगी? एनर्जी एक प्रोड्यूस मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होंगी. देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दे प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन पर्टिकुलर. यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कन्वेंशनल एनर्जी में, जब डीजल पेट्रोल जलेगा, कोल जलेगा तब एनर्जी मिलेगी. लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सोलर एनर्जी, और डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगे, उससे एक फोटोवोल्टेइक सेल बनेगी, फोटोवोल्टेइक सेल. तो उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कैन पोल्यूशंस, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा. जैसे डीजल है, पेट्रोल से, कोल है, इससे क्या है? प्रदूषण बढ़ेगा. लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, इससे पोल्यूशन क्या होगा? नहीं होगा. दिस डू नॉट कॉज पोल्यूशन. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर इजी टू स्टोर. जैसे डीजल, पेट्रोल अपन स्टोर कर सकते हैं. लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर नॉट इजी टू स्टोर. उसको स्टोर नहीं कर सकते. जैसे सोलर एनर्जी को, वाइंड एनर्जी को, उसको स्टोर नहीं कर सकते. देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर कैटेगरी एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. कौन से कैटेगरी में आते हैं? कन्वेंशनल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर नॉट कैटेगरीज further as primary or secondary. Then conventional source of energy, उसके एग्जाम्पल्स है फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल. सेकेंडरी सोर्स है कोल, कोक, पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल्स. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड tidal energy. Then next topic, we have discussed about the present global energy use and future demands. Future global energy use and future demands. Then global energy means, what is meant by global energy? Global energy consumption is defined as
the total energy used by an individual or organization from around the world. ग्लोबल एनर्जी मतलब जागतिक ऊर्जा, क्या बोलेंगे उसको, जागतिक ऊर्जा. ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमशन इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी यूज बाय एन इंडिविजुअल or organization from about the world. The global energy consumptions, United States present 21% energy consumed हो रही, चाइना 16 मतलब 16% कंज्यूम्ड हो रही, रसिया 6% कंज्यूम्ड हो रही और जापान 5% कंज्यूम्ड हो रही. एनर्जी, द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम conventional or non-conventional source, for example fossil fuels, coal, coke, nuclear fuels. Due to rapid industrializations and also population, the uses of energy has been increased. It is also known that the uses of fossil fuels as compared to other energy sources is maximum. Overall views of the situations, has made us more and more aware and concentrated for making maximum use of renewables source of energy such as solar, wind and tidal energy. The present use of energy resources, the term energy has been known to us for ages. The energy can be defined as capacity to do work. Energy means क्या होता है? Capacity to do work. Thus, in all industrial operation, the input of energy is must to obtain ends output from the industry. Future demands of energy sources. Future demands, population increases, lifestyle changes, innovative technology come in existence, increase industrializations. तो future demands of energy sources, future demands, the future demands of various energy sources will be increasing due to populations. जो भी एनर्जी सोर्सेस का जो अभी डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्यों बढ़ते जा रहा? पॉपुलेशन इंक्रीजेस, पहला फैक्टर. सेकंड, लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो गई, इसके वजह से भी डिमांड्स जो सोर्सेस है, डीजल, पेट्रोल्स, कोल, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही. मोर ऑफ rural areas get covered with the supply of energy sources. Increase industrializations, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही, इसकी वजह से भी जो सोर्सेस है वो सोर्सेस की डिमांड बढ़ती जा रही. इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स एंड डेवलपमेंट्स, इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स एंड डेवलपमेंट्स, इसकी वजह से भी एनर्जी सोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही. देन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कम इन एग्जिस्टेंस. देन नेक्स्ट टॉपिक्स वी हैव डिस्कस अबाउट